So let's start with question number 2. Visible to everybody? So first and foremost, we'll draw the format of trading account. और जैसे कल हमने last class में question solve किया था, we'll continue with this. So I hope so no help is required. सब लोग खुद से कर लेंगे. Format सबने draw कर लिया? Yes, sir. चलिए. First and foremost, what do we write on the debit side, children? To opening stock account. I hope so everybody knows that opening stock is an expense, not asset. Yes, sir. Why? Because you're going to sell it in current year. When you're going to sell it in current year, it happens to give you some profit. Profit means benefit. So that cost which gives benefit to the business is known as expense. After opening stock, what do we write on the debit side, children? Less purchase return. Do we have purchase return given in this question with us? No. तो आप सीधे परचेज की वैल्यू लिख लीजिए. हाउ मच? 2500. अब मैंने बोला कि बगल वाले घर में चले जाना है. सो क्रेडिट साइड वी पुट व्हाट? बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. डू वी हैव सेल्स रिटर्न अवेलेबल इन द क्वेश्चन? नॉट एट ऑल. सेल्स की वैल्यू दी हुई है चिल्ड्रन एंड दैट इज 3600. करेक्ट. And after sales, what do we put? By closing stock. We have only one value or market price is also given. Closing stock, we have only one value or market price is also given. Only one. If both would have been given to us, we would have considered the lower one or higher one. Applying conservatism principle, फालतू profit ना record हो जाए higher value लिखकर. How much, children? 300. I hope so. This much is super perfect. समझ में आ गया? पक्का. एक्सपेंस के नाम पे हमारे पास और क्या है बच्चों? वेजेस, मजदूरी. We put it on the debit side or not? चलिए. 100. So people are super intelligent and can answer me. Credit total is what, children? 39. Debit total is what? 31. सर ये तो शगुन का 3100 है और ये 39 है. कितना डिफरेंस आ रहा है? 800. एंड विच साइड इज शॉर्ट? सो अगर मैं डेबिट में 800 लिख दूं बच्चों, सो बोथ साइड वुड बी इक्वेटिंग 3900 और नॉट? एनी मेनी डाउट्स? पक्का? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए. So had it been a normal ledger account, we could have written on the debit side to balance carried down. Is it a normal ledger account, children? No. Credit excess means income more. Debit short means expense less. Which type of profit it is? So we'll be putting gross profit transferred to PL account. Difficult, children? No, sir. समझ में आ गया कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट? बना लिया? चलिए अपडेट वेरी क्विकली कर लिया भाई. चलिए शैल आई प्रोसीड फर्दर? आ गया सबका आंसर ट्रेडिंग अकाउंट का 800 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? स्टार्ट वेरी क्विकली. रेडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? चलिए. What do we write first and foremost on the debit? To opening stock. Value? Excellent. Thereafter, children, what do we write on the debit? Purchase minus purchase return. So we'll be putting the value of purchases in the inner column. Here it sounds to be 1,50,000. Then we'll be subtracting 900 purchase return. Correct? What is 1,58,000 minus 900 बच्चों? 1,57,100. समझ में आ गया? समझ में आ गया? डेबिट भूल जाइए, क्रेडिट में आइए. What do we write on the credit, children? By sales. How much do we need to put, children? In the inner column, sales 2,62,000. Correct, children?
And do we have anything like sales return? Add, subtract, क्या करेंगे? Subtract within brackets and draw line. What is 262 minus 600? Very good. Then children, what do we write after putting sale less sale return? Closing stock. Value 8600. Understood this much? What people feel like? क्या कोई expenses है हमारे पास? No. Credit ही excess लग रहा है. But please don't take it for granted कि हमेशा आपका credit ही excess आएगा children. Credit भी excess हो सकता है, debit भी excess हो सकता है. So if credit is more, debit is short, children, what we'll be getting on the debit side named as? To, don't say Google Pay, GP Go, to gross profit transfer to PL account. Credit total is how much, children? 2,70,000. सबको समझ में आ रहा है? And debit में it is 157,100 plus 5,700, 162,800. Let's calculate the difference. 2,70,000 minus 162,800. 0, 0 becomes 0, 10, 8, 2, कितना बचेगा children? 8, 1 lakh, no. इधर से 1 ले लिया इसने, 2 बचा 80,200 और 26 में 16, 108200 is the right answer or 98,200 is the right answer? बोलिए भाई बोलिए. 107, oh 9 minus, sorry 107,200 sounds to be the correct answer. Be quick to this. समझ में आगे चलें. सो क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना बहुत भयंकर चीज है? नो, बहुत आसान है. क्विकली चलें, क्विकली. तो पीपल गॉट द आंसर. चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पहले एनालाइज कर लेते हैं व्हाट वी विल बी पुटिंग एंड व्हाट वी वुड बी इग्नोरिंग. चलें, ओपनिंग स्टॉक वुड बी रिकॉर्डेड और नॉट? वेरी गुड. Purchase would be recorded, children? Yes. Any record for sales to be maintained here? Yes, purchase return is return outward. Any adjustment for this? Yes or no? Yes. Sales return, that is return inward. Any adjustment for this? Yes. चलिए, तो इतना तो taken for granted है. तुरंत एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के at least people should put this much composition. And at last, children, we have closing stock with us. This too should be going or not? तो जो रिकॉर्ड होना है हमने लिख लिया. Wages would be recorded, children? Carriage inward would be recorded? क्या carriage outward भी रिकॉर्ड होगा? No. Selling expense. Salary is paid to the worker in the office. ये ट्रक से सामान अपनी पीठ पे ढो के अंदर तक नहीं ला रहा है. We are giving salary to the person who's working in the office. So goods ऑफिस में गोडाउन में आ गए, तब इस एम्प्लॉय का काम है. तो इट इज द एक्सपेंस आफ्टर बाइंग और आफ्टर बाइंग? सो इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आफ्टर बाइंग कैटेगरी है तो? नो. सो दिस टू वोंट बी गोइंग. रेंट, ऑफिस का रेंट है चिल्ड्रन, क्या इसका बाइंग से कोई लेना देना है? नो. सो दिस वोंट बी गोइंग. कैरेज आउटवर्ड तो आपने पहले ही बता दिया. पावर, कोल, गैस मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री में खर्च किया गया होगा. अप टिल और आफ्टर बाइंग? अप टिल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो बाइंग से पहले हुई है ना. सो अंडरस्टूड व्हाट ऑल वुड बी अपीयरिंग. तो बस ऐसे धीरे धीरे आपको कुछ एक्सपेंसेस और ज्यादा मिलेंगे, कुछ जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे. तो whensoever you find any expense, just question yourself as many number of times as you can कि ये एक्सपेंस बाइंग से रिलेटेड है या उसके बाद है. If the answer is yes, it is up till buying, it is categorized as a direct expense and it would be recorded in a trading account. और अगर बाइंग के बाद है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा. चलो, बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट सबका. बी क्विक. चलो
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लिखेंगे, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न ऑन द क्रेडिट, परचेज लेस परचेज रिटर्न ऑन द क्रेडिट और डेबिट and closing stock on the credit. These items everybody has mentioned. Expenses के नाम पे we had carriage in word, carriage out word, par, rent, salary. But we are concerned only with carriage in word. We are concerned with wages. We are concerned with par, coal and gas. हमको indirect वालों से कोई लेना देना नहीं है. इतना सबने लिख लिया. So credit is 154. And debit आएगा 2095 115 and 116 118 500. Debit side is short by what? We call this as what, children? Gross profit. इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? Any doubts? Many doubts to this? पक्का? Confirm? चलिए. So in continuation एक छोटा सा टॉपिक है. While studying trial balance मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक दो कंडीशंस में चिल्ड्रन ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज पुट द हेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. बहुत ज्यादा मैं आपको लिखने को नहीं बोलूंगा. आई वुड बी रादर सजेस्टिंग कि आप बस एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे इन विच यू विल बी पुटिंग head of account, you will write debit balance and credit balance. Inside this you will be putting cost of goods sold. I hope so सबको याद होगा हमने derivation सीखा था उस समय. In the debit balance column, and with this you will be putting what? Closing stock. समझ में आ गया? Children understood this? एक अप्रोच तो ये है. दूसरी अप्रोच कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब आएगा. The first one, when you have COGS, head of account, debit balance and credit balance. And second approach, children, बहुत ध्यान से सुनिएगा. When the question gives you what? Adjusted purchases. In that case also, closing stock would be appearing inside. So under two conditions, closing stock appears inside the trial balance. First and foremost, what is given to us, children? Cost of goods sold. And second, adjusted purchases. Why is it so? जब हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सिखाया था, डेरिवेशन सिखाया था कि क्यों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया तो इसको लिखना अंदर जरूरी है. एडजस्टेड परचेजेस वाज नॉट टोल्ड एट दैट टाइम, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, मतलब जब हम फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू विल हैव क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, दो चीजें आपको और नजर आ जाएंगी. वन इज COGS and other is adjusted purchase. बट एक इंपॉर्टेंट बात और दिमाग में रखनी है, अगर COGS क्वेश्चन में दिया चिल्ड्रन व्हाट COGS, तब आपके ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, आपके ट्रायल बैलेंस में परचेज नहीं आएगा, परचेज रिटर्न नहीं आएगा, एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे. तो COGS एक बहुत बड़ा बरमूडा ट्रायंगल है जो इन सबको खा गया है. बट अगर एडजस्टेड परचेजेस लिख के आता है चिल्ड्रन, तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक गायब होगा, परचेज गायब होगा, परचेज रिटर्न गायब होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल स्टिल बी अपीयरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस. तो COGS के लिखने से इन सब के लिखने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट लाइक दैट कि करवा चौथ का व्रत अगर रख लिया तो छठ का व्रत रखने की जरूरत नहीं है. समझ गए? Heard this well? But when adjusted purchases is given, only you omit these three things. Why is it so? Calculation का एक derivation पढ़ेंगे, उसमें आप ये बातें समझ जाएंगे.
ओके, एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? सो प्लीज पुट दिस वेरी क्विकली, और इनके लिए बच्चों एक हेडिंग भी लिख दीजिएगा. द हेडिंग इज आइटम्स excluded. बिकॉज आपका मतलब तो निकल जाएगा तोते की तरह रटने से कि सीओजीएस दिया है तो ये अंदर, एडजस्टेड परचेज दिया तो ये अंदर, बट आने वाले टाइम में आप फंस जाएंगे भविष्य में. ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आईएससी 2005 में, क्लास 12th में. ट्रायल बैलेंस वाज गिवन, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाना था, सोल प्रोप्राइटर का नहीं. बट ट्रेडिंग पीएल उस जमाने में वैसे ही बनता था जॉइंट स्टॉक कंपनीज का. क्वेश्चन बड़ा चतुर निकल गया. ओपनिंग स्टॉक भी अंदर दे दिया, परचेज भी दे दिया, परचेज रिटर्न भी दे दिया, एंड एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया. भोले भाले अनपढ़ बच्चों ने एडजस्टेड परचेज भी लिखा, ओपनिंग स्टॉक भी लिखा, परचेज भी लिखा, परचेज रिटर्न भी लिख दिया. व्हेन एडजस्टेड परचेज इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस, तो इन्होंने सब कुछ लिख के इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट कर दिया. आई रिपीट, इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट, एक्सपेंसेस बढ़ा दिए उन्होंने. आप ये लिख चुके हैं तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. सीओजीएस के अंदर बच्चों सबको पता है ये आइटम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर सीओजीएस के साथ इनको भी मेंशन कर दिया, आइटम ऑफ एक्सपेंसेस वुड गेट डुप्लीकेटेड. ज्यादा लिख देंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों का लॉस आ गया. क्योंकि 12th क्लास में कोई भी टीचर आपको फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ाएगा. अब तो खैर सिलेबस से हट चुका है, बट उसका एप्लीकेशन पूरा का पूरा है. तो इसीलिए आपको नजर आएगा 12th क्लास में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब कुछ नजर आएगा जो यहाँ पे आपने पढ़ा. तो ये गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से याद रखना है. सो व्हेन सीओजीएस इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक अंदर, एडजस्टेड परचेज इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज अंदर. समझ गए? अगला एप्लीकेशन जो मेरे को आपको बताना है, अगर मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दूं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस दे दूं, ट्रेडिंग अकाउंट के पराठे का पूरा फिलिंग आपको मिल चुका है. क्लोजिंग स्टॉक इज विद यू, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर विद यू. ट्रेडिंग अकाउंट जैसे पराठे की पूरी फिलिंग है आपके पास. बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. बट अगर मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दूं, पापा और मम्मी, क्या आपको मोहल्ले वालों की जरूरत है? नो. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन सब आइटम्स का जूस है चिल्ड्रन. इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अवेलेबल, क्या आपको इनकी जरूरत है? नो. कहने का मतलब इफ दीज आइटम्स विद क्लोजिंग स्टॉक इज अवेलेबल, बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन सबका सब्स्टिट्यूट है चिल्ड्रन. व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, डू वी नीड देम? नो. आप सिर्फ इन दोनों चीजों से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे. सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, करेंगे ट्रायल, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या गड़बड़ी है क्या सही है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? पिज्जा बेस खरीदिए, उसके ऊपर की टॉपिंग खरीदिए, अलग अलग सॉसेस खरीदिए, और आपने 600 रुपए खर्च कर दिए. 350 रुपए में बना बनाया पिज्जा जोमेटो से ऑर्डर कर लीजिए. तो अगर बना बनाया पिज्जा आपके पास है चिल्ड्रन, क्या उसके रॉ मटेरियल की जरूरत है? नो. सिर्फ पिज्जा खाइए, डकार मारिए, घर चलिए. अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो ये दो बातें क्लियर हो गई. कब ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा क्लोजिंग स्टॉक? जब एडजस्टेड परचेज दिया है और जब सीओजीएस दिया है. अंडरस्टूड दिस? इसका इफेक्ट क्या है, इसको कैसे यूज करना है, अगला पार्ट ऑफ द स्टडी ये है हमारा. सो इन सबको तो हम पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करेंगे. चलिए चलिए, ये क्वेश्चन आपको एक नजर आ रहा होगा, मिल गया? सर ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने किया था. सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है?